Morning dear students, today we are discussing biology of class 12 chapter 1st, reproduction in organisms. All of you know that what is reproduction. I previously explained all of you in 11th class some topics, and also all of you read much in class 11th. Each and every organisms can live only for a certain period of time. All of you know that our age is limit. सारे ऑर्गेनिजम्स का जीवन काल निर्धारित होता है कि वो कितने दिनों तक जीवित रहेगा, ये निश्चित है। लेकिन उसके अलावा 1 साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है। द पीरियड फर्स्ट टॉपिक ऑफ इन दिस is life span. What is life span? The period from birth to the natural death of organism represents its life span. All of you know that. वह समय बर्थ से लेके मरण तक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो समय होता है वो उसका लाइफ स्पेन होता है। एंड द मेन टॉपिक ऑफ हियर इज reproduction, about reproduction, how any organism reproduce. And all of you know that reproduction are two types, sexual reproduction and asexual reproduction. But in this introduction, previously we discussed some theory about what is the age of banyan tree, what is the age of peepal tree, what is the age of crows, what is the age of elephant. All of you know that what are life span. You may say that what are life span of these organisms. All these topics come in this. So firstly, all of you look this figure here, elephant. You feel it. What is the lifespan of elephant? What is the lifespan of rose? What is the lifespan of dog? What is the lifespan of butterfly? Butterfly may be one to 2 weeks here given, but all of you feel it. Crows also given, parrot also given, but banyan tree and tortoise also given 100 to 150 years as lifespan. Now we come main topic, reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which organisms give rise to young ones, offspring similar to itself. The offspring grow, mature and turn produce new offspring. All of you know that reproduction में कोई नया ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, वो अपनी तरह संतान को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे वही होता है रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिए। रिप्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू यंग वंस। ऑफस्प्रिंग मीन्स यंग वंस, ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे। वो अपनी संतान को जन्म देता है, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर इज ए बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। और पूरा साइकिल क्या होता है? बर्थ होता है, जन्म होता है, इसके बाद ग्रोथ होगा, उसके बाद डेथ हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कम्युनिटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। You will study later chapter 5 principle of inheritance and variations. I will explain you what is the principle and what are the variations. You will study in next chapter and chapter 5 Mandarin law. There is a large diversity in the biological world. बहुत सारे डाइवर्सिटी हैं बायोलॉजिकल वर्ड्स में। and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। और बहुत सारी विभिन्नताओं के साथ साथ सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उनका एक तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, उनके प्रोडक्शन का। वो अपनी तरह बच्चों को, संतान को उत्पन्न करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल, फिजियोलॉजिकल एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। और वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो किन कंडीशंस में रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। बेस्ट वेयर हियर वी डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्टली all of you know that asexual reproduction. Asexual reproduction means there is the involvement of
only one parents. But in sexual reproduction, there is the involvement of two parents. Here we discuss about asexual reproduction. All of you know that in amoeba and in yeast, firstly we discuss yeast budding formation, and birds detach from their parents and make a new organisms. यहाँ पे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो एग्जांपल देखेंगे वो किसका देखेंगे, बर्डिंग जो ईस्ट में होता है, पहले बर्ड्स का निर्माण होता है और इसके बाद ये बर्ड्स जो है डीअटैच हो जाती है अपने पेरेंट्स से और न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर लेती है, इसको बोलते हैं बर्डिंग. बाइनरी फ्यूजन, ऑल ऑफ यू नो इट वेल. What is the binary fissions? Binary fissions occurred in amoeba. In this, one cell divided in two daughter cells. In amoeba, one cell is divided into two daughter cells. By this way, some organisms reproduce. And now, some other example of asexual reproduction is जूस्पोर्स ऑफ क्लेमेडोमोनास. क्लेमेडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले बहुत सारे जूस्पोर्स बनते हैं और ये जूस्पोर्स जो है ब्रस्ट हो जाते हैं उसमें से और अलग अलग अपना एक इंडिविजुअल बना लेते हैं, अलग अलग वो रिलीज हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं. अब इसके बाद जो होता है क्लेमेडोमोनास में होता है, क्लेमेडोमोनास में जूस्पोर्स के द्वारा होता है. इसके बाद कोनिडिया पेंसिलिनियम में जो होता है वो कोनिडिया के फॉर्मेशन जो है जिससे रिप्रोडक्शन होता है. बर्ड्स इन हाइड्रा में भी बर्डिंग होता है. इसके अलावा गोम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ग्रुप्स में गोम्यूल्स बनते हैं. किस में बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ये सारे गोम्यूल्स जो है कि सेल डिवीजन के द्वारा उससे ब्रस्ट हो जाते हैं. ब्रस्ट होने के बाद जो है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. ऑल ऑफ यू लुक दैट फिगर. In here also some examples of vegetative reproduction. In angiosperms कैसे vegetative reproduction होता है. आप सब लोग जानते हो कि आइज ऑफ पोटैटो को हम लोग ग्रो कराते हैं, उसको कट कर लेते हैं पोटैटो जो उसकी आइज को जो है ग्रो करा देते हैं और उन न्यू ऑर्गेनिजम्स में ओरिजिनेट हो जाता है. इसी तरह से राइजोम ऑफ जिंजर्स के भी नोड्स को काटते हैं और उसमें एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं जिसके द्वारा वो नए ऑर्गेनिजम्स का फिर निर्माण करता है. बल्ब इन एगेव और बल्ब का फॉर्मेशन है एगेव में. इसके अलावा लीव्स बर्ड्स इन ब्रायोफाइलम में लीफ पे बर्ड्स होती हैं, वो बर्ड डीअटैच हो जाती हैं और नए न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करती हैं. इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइसिंथ जिसको काय बोलते हैं, तालाबों में ये बहुत दूर तक फैला होता है, इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. Here you have I have discussed all topics of asexual reproduction, how they grow, they reproduce and they become new organisms. All of you know it well, I understand it. And the next topic of sexual reproduction, tomorrow I will discuss this topic. And if any problem, you read carefully. If any problem in any topic of NCERT, you ask me and put up questions.